good evening. I'm joining you live from Ram Ki Nagri, Ayodhya, where all you can hear all around you is Ram Ram or Jai Siya Ram. Well, ladies and gentlemen, today marks a momentous occasion, a historic occasion, as the first look of the 51-inch tall, weighing around 150 to 200 kilometer, Ram Lala's idol was revealed. The first look is out now, and the wait of generations of Ram Bhakt who've been praying over 500 years, praying and waiting for the return of their Ram is over. This first look of the Lord with a golden bow and arrow in his hand will be etched and inscribed in the hearts and minds of millions of faithful. Take a good look at this picture. For the first time, you are seeing the full idol of Ram Lalla in all its glory. His face has an innocent smile. His hair is wavy, and the Vishnu Tilak adorns his forehead. This is as close as one can get to the darshan of Lord Ram. While these pictures were taken at the sculptor's workshop before the Pran Pratishtha rituals began in Ayodhya, the 51-inch black stone or Krishna Shila idol that has been placed inside Ram Mandir's Garbhagriha has a blindfold. A yellow cloth is placed on his eyes for now. Lord Ram, who's in his Bal Swarup, is a child between the age of 3 and 5 years. He is standing on a lotus and has been garlanded with pink flowers. His murti also has intricate carvings with many Hindu symbols like Om, Swastika, Chakra and Gada. The various avatars of Vishnu, Matsya, Kumbra, Varaha, Narsingh and Vaman are engraved on the right side of the murti. The idols of Lord Ram and Lord Garud are on the bottom right and left. On the right side of the arch that's placed behind the murti, there are tiny idols of Parshuram, Krishna, Buddha and Kalki. On the 22nd of January, when the main Pran Pratishtha ceremony takes place, life will be infused into Lord Ram's idol through rituals. This is done so that the idol assumes the role of a deity who can accept prayers and grant boons. Prime Minister Narendra Modi, who will be present in the Garbhagriha during the ritual, will take off the cloth that's covering the deity's eyes. For this, Prime Minister Modi is observing a very rigorous 11-day Anushtan. Ayodhya is gearing up to welcome guests from across the nation for the grand January 22nd ceremony. The beautification of the city and the fervour in Ayodhya Vasis reminds seers of Ram Rajya. One might wonder what will happen to the infant idol of Ram Lalla, one that's kept for darshan in a makeshift temple near the Ram Mandir. This idol too will be placed in the Garbhagriha, and during Hindu festivals and holy events, it might be taken out for Shobha Yatras and processions. As the final countdown to the Pran Pratishtha gets underway, Chief Minister Yogi Adityanath is in the ancient city to take stock of preparations. He visited the Ram Mandir and also offered prayers to Ram Lalla's infant idol. राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा. Seers of Ayodhya are carrying out consecration rituals every day. Today, they performed the Agni Manthan. In 2 days from now, the entire nation will watch Ram Lalla's Pran Pratishtha. This ceremony will mark a new chapter in India's civilizational journey. Bureau Report, Times Now. All the guests who will take part in the Pran Pratishtha, the consecration ceremony, won't just get the darshan of Lord Ram, but they'll also get a special return gift, something that they will cherish for their entire life. Now, this particular return gift package has specially curated, exclusive, hand-picked items. Let's take a look at this detailed, exclusive report on what the return gift consists.
अच्छा, आप ये बता रहे थे कि ये हैंडओवर कर दिया गया है चंपत राय जी को ये सारे पैकेज, और सबसे पहले भगवान राम को दिया जाएगा। जी, हैंडओवर करने की जो बात है तो हमने एक स्मृति चिन्ह चंपत राय जी को दिया है और विशेष रूप से पहले हम रामलला सरकार जी को देंगे, पहले उनका उपहार उनको देंगे, उसके बाद इसके वितरित करने की प्रक्रिया चालू की जाएगी। जी शिवम जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप इसमें क्या क्या है एक एक चीज जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए भी और उसका जो महत्व है वो समझाइए भी। स्वाति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतने संघर्षों के बाद जब आज 8000 के आसपास अतिथि, देवतुल्य अतिथि अयोध्या में इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होने वाले हैं, तो यह उनके या उनके पूर्वजों के किए गए सत्कर्मों का एक फल है। तो ऐसे समय पर जब ये वो अयोध्या आ रहे हैं और विशेष रूप से प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे हैं, तो संस्थान की तरफ से उनको एक स्मृति चिन्ह, ऐसा स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है कि जो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करें। 22 जनवरी को आने वाले अतिथि जो हैं उनके लिए यह एक ताम्र पत्र होगा जिसमें रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जन्मभूमि पुनर्निर्माण, क्योंकि मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, नव मंदिर नहीं है, पुनर्निर्माण है। तो श्री राम जन्मभूमि पुनर्निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 अयोध्या, यह अंकित होगा, जिससे कि जो साक्षी है उनका एक आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये उस दिन साक्षी हुए थे। इसके बाद एक यह डिबिया होगी ओम लिखा हुआ, जब इसे आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जहां पर जन्म लिए थे उस जगह की रज है, जहां पर आज श्री विग्रह स्थापित हो रहा है उस जगह की यह रज है। ये वहाँ की मिट्टी है। जी, मिट्टी है ये। इसी के साथ तिलक के रूप में यह मिट्टी होगी। इसी के साथ शालिग्राम भगवान होंगे, क्योंकि शालिग्राम जी के स्वरूप से ही राम जी की मूर्ति तैयार की गई है। राम जी का विशेष शस्त्र जो रहा है धनुष और बाण, तो यह धनुष बाण रहेगा जिसमें राम अंकित किए होंगे। इसके साथ जो भी अतिथि आ रहे हैं उनको गले में धारण करने के लिए तुलसी की श्री राम वाली माला का एक मनका होगा या मोती होगी। इसके साथ एक प्राण प्रतिष्ठा के एक स्मृति चिन्ह के रूप में यह चांदी का सिक्का होगा जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी 2024 श्री राम जन्मभूमि अयोध्या अंकित किया होगा। और इसी के साथ इस तरह के एक कमंडल के अंदर, हमारे संतों की परंपरा में इसे कमंडल कहा जाता है, तो यह एक कमंडल होगा और इस कमंडल के अंदर सरयू नदी का जल होगा। तो इस तरह से इतनी चीजों को हम यहाँ से सनातन सेवा न्यास के माध्यम से भक्तों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। अब इसी के साथ एक भगवा सॉल होगी और भगवा सॉल के साथ एक डब्बा होगा जिसके अंदर 5 लड्डू और 3 प्रकार के चंदन रखने की डिबिया के साथ में दिए जाएंगे। हमारी जब सनातन सेवा न्यास के हमारे जो मार्गदर्शक मंडल के संत जन हैं उन सब से चर्चा हुई, तो चर्चा के बाद यह निर्णय निकला, क्योंकि इसमें परम पूज्य जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, शंकराचार्य जी हैं हमारे, लगभग 12 की संख्या में महामंडलेश्वर हैं, अलग अलग मंदिरों के महंत हैं। तो सभी से चर्चा करने के बाद अंततः यह सुझाव आया कि इतनी चीजों को यदि हम सम्मिलित करते हैं तो यह एक पवित्र स्वरूप धारण करेगा और लोग इसे ले जाकर के अपने पूजा स्थान में रखेंगे और एक श्रद्धा के साथ में इनकी पूजा अर्चना की जाएगी। और विशेष रूप से 22 तारीख को दिया जा रहा उपहार है, तो सामाजिक लोग या उस नगर या ग्राम के जो लोग हैं उन्हें भी देखने की बड़ी अभिलाषा रहती है कि अयोध्या गए थे, क्या लेकर के आए। तो उसके लिए भी एक बहुत सुंदर सा एक ये उपहार होगा कि आराम से सब दर्शन भी कर सकते हैं और लंबे समय तक यह खराब भी नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा, जो मेहमान आने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्या ये केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा या उसके अलावा भी जो नहीं आ पा रहे हैं उन तक भी आप पहुंचाएंगे? देखिए, 22 तारीख तक स्वाति जी, 22 तारीख को हम यहाँ पर आए हुए अतिथियों को इस उपहार के साथ मिलेंगे, उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। मतलब सीधा यही हुआ कि सबसे पहले तो हमारे जो अतिथि आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में उनके लिए यह उपहार है। उसके बाद सनातन सेवा न्यास की टीम जो की है वह भारत और विश्व के अनेक देशों में रहने वाले जो सनातन के उत्कृष्ट परिवार हैं, जिन्हें सनातन धर्म के कार्यों में रुचि है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। विशेष रूप से सरकार, राज्य सरकार के पदाधिकारी, मंत्रीगण, विधायक, सांसद, वो किसी भी पार्टी के हों,
और इसी के साथ में क्षेत्र के जो उत्कृष्ट कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे प्रति जिले से 22 लोगों का हम लोगों ने नाम चिन्हित किया है, जिन्हें यह उपहार उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। Remember, today is the 4th day of the consecration ceremony and several rituals were performed in the Garbh-Grih. To talk about the significance of the rituals, we were joined by the seers who helped us understand why the rituals were performed and the significance of the rituals that were performed on the 4th day of the consecration. Take a look at this exclusive conversation. आज क्या विधि विधान, क्या पूजा हो रही है गर्भगृह में? देखिए, आज की जो पूजा है, भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं और अब उसमें अरणि मंथन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। अरणि मंथन का अर्थ होता है कि हम लकड़ी से ही लकड़ी को रगड़ करके, घिस करके और फिर वहां से अग्नि उत्पन्न करते हैं और उसको फिर ले जाकर के हवन कुंड में स्थापित करते हैं। और हवन कुंड का पूजन किया जाता है क्योंकि कुंड को सृष्टि का स्वरूप माना जाता है। उसमें दी हुई आहुति सीधा भगवान तक पहुंचती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पूजा है और आज से अग्निदेव वहां प्रकट होंगे और भगवान गणेश जो हमारे प्रथम देव हैं, गणपति पूजन से उसको प्रारंभ किया जाएगा। तो आज का दिन मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण दिन को हम शुरुआत कर रहे हैं अरणि मंथन के द्वारा, कुंड पूजन के द्वारा और अग्नि प्रवेश करा करके हम हवन करेंगे उसमें। जगत गुरु जी, हमने अभी जो तस्वीरें देखी उसमें मुख ढका हुआ है अभी रामलला का और एक नेत्रों मिलन रिचुअल होने वाला है, उसके बारे में समझाइए। क्या उसके बाद पर्दा हटाया जाएगा चेहरे पर से? नहीं, पर्दा तो अंत में हटाया जाता है। 22 तारीख को ये पर्दा मोदी जी के द्वारा से हाथों से हटाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि वही मूर्ति का अंतिम स्पर्श होता है जब देश के लिए, लोगों के लिए वो मूर्ति और दर्शन सुलभ हो जाता है। तो वो कार्य जो है वो सबसे अंत में होता है। ये 7 दिन तक चलने वाली पूजा है जो 22 तारीख को पूर्ण होगी और जब मूर्ति का पट्टी हटाया जाएगा तो सामने दर्पण रख करके देव दर्शन कराया जाता है, भगवान को दर्शन कराया जाता है। और कई मंदिरों में हम देखते हैं जब देव दर्शन कराते हैं तो शीशा चटक जाता है और उसके बाद में काजल लगाया जाता है। तो वो अंतिम स्पर्श की प्रक्रिया है जब भगवान की पट्टी खोली जाएगी और भगवान को लोग देखेंगे और भगवान भी सबको देखेंगे। ये 22 तारीख से प्रारंभ होगा। और ये भी कहा जाता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, ये भी कहा जाता है कि उस वक्त भगवान की आंखों में नहीं देखना चाहिए क्योंकि तेज इतना होता है उनका कि एक ह्यूमन फॉर्म में एक मनुष्य के लिए वो देखना शायद उसको बर्दाश्त न कर पाए। देखिए, भगवान के जब वास कराए जाते हैं तो भगवान के नेत्रों में जो प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की जाती है वो प्रतिष्ठा को, नेत्रों को पट्टी से बांधा जाता है। और जब सभी से जब भगवान को कर्मकुटी से निकाला जाता है, सभी वास कराए जाते हैं, सभी वासों के बाद जब भगवान का महास्नान होता है, महास्नान करने के बाद जब भगवान का श्रृंगार करने से पूर्व एक नवीन, कम से कम छोटी, 5 वर्ष की, 7 वर्ष से कम उम्र की कन्या को के द्वारा शहद और घी की सलाका के द्वारा, सोने की सलाका के द्वारा भगवान का नेत्र तो सबसे पहले प्रथम कन्या देखती है और सोने के सलाके के द्वारा भगवान के नेत्रों को वह अबोध कन्या खोलती है और तभी से भगवान सबको, सारे संसार को देखते हैं। तो यह प्रक्रिया उसकी होती है। ये जो कल स्थापना हुई है मूर्ति की गर्भगृह में, उसकी खासियत या विशेषता के बारे में बताइए, क्योंकि कहा जाए कि कृष्ण शिला से रामलला की मूर्ति तैयार हुई है। 51 इंच और लगभग 200 किलोग्राम उसका वजन बताया जा रहा है। देखिए, अब वो मूर्ति नहीं रही है, पहली चीज, अब वह विग्रह हो गई है। जब तक मूर्तिकार के यहाँ तक रहती है तब तक वो मूर्ति रहती है। जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश कर जाती है वो विग्रह हो जाती है। और जैसे ही आज से भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के जो मंगल, जो वैदिक विधि और हमारे सनातन की जो परंपरा है पूजा पद्धति की, जो चारों वेदों से भगवान की जो पूजा होने वाली है, जो वास होंगे, उसके बाद भगवान की जितनी भी विधियां हैं, अब वह मूर्ति हो जाएगी और वह वो भगवान हो जाएंगे, मूर्ति नहीं रहेंगे। तो अब विग्रह कहना चाहिए, मूर्ति नहीं कहना चाहिए। विग्रह हो गया है भगवान का। और 5 वर्ष के हमारे राघव जी, जब राघव जी की नेत्रों से जब उनके चेहरे का वो है कपाट खुलेगा, निश्चित रूप से वह छठा बहुत ही अलौकिक और अद्भुत होगी और पूरी दुनिया निगाहें नहीं हटा पाएगी हमारे रघुनंदन की क्या झांकी होने वाली है। And with that, we're slipping into a very short break, but news and updates will continue. Stay on with us.
Welcome back. The first look of Ram Lala is out. The first look of the 51-inch tall Ram Lala idol. And in fact, as the Bhakts await darshan of Ram Lala, 80 tons of flowers, approximately 80 tons, have been brought, especially from Kolkata, to decorate the Ram temple. These flowers will not just be used to decorate the temple, but the entire city of Ayodhya. Let's take a look at this special report. As the actual Pran Pratishtha is coming close, the preparations are on a full swing in Ayodhya, and what you see behind me are 80 tons of Genda flowers, the marigold that has come to adorn the Ram Mandir for the 22nd of January, the consecration ceremony. These flowers are being taken inside the Garbhagriha also and taken inside the Mandir premises. These flowers have come specially for the consecration ceremony. They are orange and bright yellow marigold flowers that have come from Kolkata, along with beautiful other flowers, also multicolored flowers, which will be taken inside for the consecration ceremony. The decoration of the temple has already started, with Mukhya Dwar being adorned and all the other pillars, the newly constructed pillars of the Ram temple that are already being decorated. I have with me Pawan ji, who's come from Bulandshahr. He's प्रोफेशनल इन दी फ्लावर डेकोरेशन. पवन जी, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है और कितने कारीगर यहाँ पे लगे हैं? मैडम, अभी हमारे यहाँ पर ये तैयारी चल रही है मंदिर के, राम मंदिर सजाने के लिए, और कम से कम 700 से 800 लड़के काम कर रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं. ये बताइएगा कि जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर दूर दूर तक ये फूल दिख रहे हैं, कितना टन फूल आया यहाँ पे? अभी तो मैडम 50 टन करीब आ चुका है और आने वाला है. अभी कितने आने वाला है ये कंफर्म नहीं है हम लोगों को. और कितने तरह के फूल हैं यहाँ पे पवन जी? अभी तो कोलकाता से भी आया, विदेशी फूल आया, कम से कम होगा 50-60 तक कलर फूलों का. The entire town of Ayodhya is completely immersed in Ram Bhakti. We also caught up with the 45th Battalion of the police performing in Ayodhya. Take a look. The 45th Battalion of Police Armed Constabulary, the PAC, is performing Shri Ram Janki Baithe Hai Mere Seene Mein bhajan just outside the Hanuman Gadi. They are rehearsing it, and on 22nd, that is the day of consecration, the Pran Pratishtha, they will be performing this particular bhajan, this particular song, and you can see that how they are all well dressed up, and this 45th Battalion of PAC is performing Shri Ram Janki Baithe Hai Mere Seene Mein bhajan, and they are rehearsing for the Pran Pratishtha ceremony. They are just outside the Hanuman Gadi. Now, we know for a fact that our Yogi Adityanath has earlier also stated that this is new Ayodhya. Here, the car sevaks will not be fired upon. Same police which fired, and the people over here are saying this is the change that they are seeing now. The same UP police which opened fired on the car sevak is performing Shri Ram Janki Baithe Hai Mere Seene Mein bhajan. This is something which is very soothing, and what an amazing performance they are giving as of now. And with that, we are slipping into another short break, but news and updates will continue here on Times Now. Stay on with us.